Morning class. So in the previous class also we started with the chapter heredity and evolution, and as I told you, evolution is a chapter that has been removed by the CBSE in the course of deleting the 30% chapter. So evolution will not be studying, but heredity is very important unit. In last class I also discussed heredity, but as it is an important chapter, that's why I'm discussing it again, so that you all can understand it in a better way and the pictures are clarified, so that you can see what is happening, what is going on. That's why I have prepared slides for you. So heredity and evolution, the introduction. So any recognizable feature of a human being or any organisms, like height, complexion means what is the color of, like the person is brown, or he's fair, or he or she is fair, or there are many shades. So the complexion, what is the height of a person, the person is very tall, medium sized, or very short. Then shape of the nose, chin, the color of the eye, hair, etc. are all said to be characteristics. ये सब जो होते हैं ये characteristics होते हैं किसी भी person के, and they are also called as traits. सो जो ट्रांसमिशन होता है ऑफ ट्रेड्स, इन करेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ये करेक्टर्स जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. सो द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमीट्स ऑफ द पेरेंट्स. जो ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा कैरेक्टर किस जीन में ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स द गैमीट, जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है पेरेंट्स के गैमीट्स में. तो गैमीट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द अदर. तो गैमीट्स आर द कनेक्टिंग लिंक ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. तो गैमीट लिंक कर रहे हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को गैमीट्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कौन सा करेक्टर ऑफस्प्रिंग में आएगा. एंड the passes or it means that the passing on of the maternal and paternal characteristics or traits to the offspring. Maternal means the traits that are passed on from the mother, and paternal the traits that are being passed on to the offspring by the father. So this is heredity. Now the variations. So as I told you in the previous class also, even we are sharing many characteristics with our parents, still we are not completely similar to our parents. We are different from them. Either our eyes can be similar to them but not completely same. तो completely same तो तब प्रोड्यूस होता है जब हम asexual reproduction करते हैं, but here genetics is all about sexual reproduction. genetics asexual reproduction के बारे में बात नहीं करते. so genetics if we are talking about, तो वहाँ variations भी होंगे, और variations तभी होंगे जब वहाँ sexual reproduction हो रहा होगा. so the difference in the characteristics और traits among the individuals of a species, जो भी differences आते हैं characteristics में हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनको हम वेरिएशंस कहते हैं. सो अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो एवोल्यूशन नहीं होगा, एंड एवोल्यूशन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. सो ऑफस्प्रिंग इज़ नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट. अगर कोई ऑफस्प्रिंग अपनी पेरेंट की ट्रू कॉपी है, उसे हम क्लोन कहते हैं, और क्लोन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही फॉर्म होते हैं, नॉट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का. So there are many kinds of variation in human species. What are the different kinds of variation in human species? That can be free and attached lobes. In the example you can see, जो ear lobes है वो attached भी हो सकता है और free भी हो सकता है. In many people you must have noticed कि कुछ लोगों में ये attached होता है, उस लोगों में ये attached नहीं होता है. complexion different होता है, dark, light brown, dusky, whitish, all these are the different complexion. इसीलिए हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. इवन वी हैव सेम थिंग्स, वी हैव 2 eyes, 2 nose, 1 nose, 2 ears, and 2 hands, 2 feet. All these are same, but still we are different from each other. This is because of the reason that variations exist. So different eye colors होते हैं, brown eyes होती हैं, hazel, black, amber, green, grey. All these are different colors of the eye. Height होती है, tall होती है या short होती है. Then chin can be cleft or it can be pointed. हेयर कलर भी डिफरेंट होता है, हेयर टाइप भी डिफरेंट होता है, और नोज़ का शेप जो होता है इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो दीज आर द वेरिएशंस जो सिमिलर होते हुए भी हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं कि येस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. नाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, हाउ दीज वेरिएशंस एक्यूमुलेट, ये कैसे इकट्ठा होते जाते हैं और एक टाइम बाद ये कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ भी बना सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं. तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस शोज अप only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. तो वेरिएशन माइन्यूट होते हैं, एक पेरेंट से
टूवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग जब आते हैं तो वो बहुत माइन्यूट फॉर्म में आते हैं, और ऐसे ही जब जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता चला जाता है तो वेरिएशंस बढ़ते चले जाते हैं, और वेरिएशंस तभी दे आर ऑफ सिग्निफिकेंस जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीशीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वेरिएशंस स्पीशीज़ के लिए वो है इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, द इन्वायरमेंट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एजेस रही हैं, मीसोजोइक एराज रहे हैं, देन डिफरेंट पीरियड्स रहे हैं, क्रिटेशियस पीरियड रहे हैं, और सब पीरियड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स फाइंड होते थे. लाइक डेवोनियन एज जो थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में फिशेस थे. देन एक एज थी दैट वाज द आइस एज. आइस एज में सबसे ज़्यादा डायनासोर्स पसंद थे, बट अब क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ और उनमें वेरिएशन नहीं डेवलप हो पाए तो वो एक्सटिंक्ट हो गए. तो एक्सटिंक्शन तभी होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है दैट मीन्स उसमें जो वेरिएशंस हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट. कभी कभी, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, बट कभी कभी नेगेटिव वेरिएशंस भी होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ने की बजाय उसे एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ वेरी रेयर चांस. तो एक एग्जाम्पल है मौत का. सो देयर वॉज अ मौत. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो pollution was very much high, or due to the high amount of pollution in the environment, जो इंग्लैंड में bark of the trees they started to turn dark brown. तो जैसे जैसे pollution बढ़ा, जो barks थे, trunks थे trees के, वो dark कलर के होते चले गए, और जो moth उस टाइम पे present थे वो लाइट कलर के थे. सो वो बहुत इजीली डिटेक्टेबल होने लगे. पहले तो बाग्स भी लाइट कलर थे, वो भी लाइट कलर थे, तो वो इतनी ईजिली नहीं देखते थे, बट एज द टाइम पासिस उनका कलर वाइट रहा, बट क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बाग्स जो ट्रीज़ के थे वो डार्क हो गए तो वो ईजिली दिखने लगे. अब ईजिली दिखने लगे दैट मीन्स दे वर ईजिली कॉट बाय द लिजर्ड्स जो भी उन पर फीड कर रहे थे. तो प्रेडेटर प्रे वाला सिस्टम जो था वो ज़्यादा अच्छे से दिखने लगा और प्रेडेटर जल्दी से फीड कर लेते थे उन प्रेस को. तो फिर कुछ म्यूटेशंस हुए. उन म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसे मॉथ डेवलप हुए जिनका कलर डार्क था. सो व्हाट हैपेंड, दीज डार्क मॉथ कंटिन्यू टू सर्वाइव, और जितने भी वाइट थे वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो गए. सो नैन दिस वॉज अ पॉजिटिव वेरिएशन कि उन्हें हेल्प किया एक्लिमेटाइज करने में विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन. नाउ ये सब जितना भी हो रहा है ना जेनेटिक्स, ये सब सबसे पहले समझाई थी ग्रॉगर जोहान मेंडल ने. एंड बिफोर studying about Mendel, we'll be talking about some important terms. So what is a chromosome? Chromosomes are the thread-like structures which are present in the nucleus of a cell and they are formed of DNA and these carries the genes. तो chromosome thread-like structures होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये DNA फॉर्म करते हैं एंड ये DNA क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं जीन्स एंड जीन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर. देन व्हाट इज़ अ जीन? इट इज़ अ यूनिट ऑफ DNA. एक DNA की एक यूनिट को हम जीन कहते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. ये गवर्न करते हैं सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन. तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो जीन लेवल पे कंट्रोल होता है एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन, जब एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो एक डिफरेंट स्पेसिफिक करेक्टर को कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ द thing which is happening at the genetic level or the gene level. Genes are actually units of heredity. Units of heredity means they are responsible for carrying out the characteristics or the transfer of characteristics from the parents to the offspring during the process of reproduction. So genes are the unit of heredity. Then there are two different types of genes, dominant gene and the recessive gene. So dominant gene क्या होता है? The gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative contrasting gene. जैसे capital T और small t जो height के लिए responsible होता है. So capital T is the dominant and small t is recessive. Even in the presence of small t, capital T will be able to express itself और जो plant है वो हमें tall ही दिखेगा because capital T is the dominant one. But the other case recessive, अगर recessive present है capital T के साथ तो कैपिटल टी विल बी एबल टू एक्सप्रेस. स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. स्मॉल टी अपने आप को तभी सिर्फ एक्सप्रेस कर पाएगा जब दो स्मॉल टी होंगे. सो ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन इट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, नॉट इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. डिफरेंट मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और होमो मतलब सेम, या तो दो कैपिटल टी या तो दो स्मॉल टी. और स्मॉल टी तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब वो दूसरे स्मॉल टी के साथ हो. सो व्हाट इज द जीनोटाइप? जीनोटाइप इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स. जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो सब मिला के एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप
फॉर्म करते हैं। देन फिनोटाइप, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ विजिबल। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें जीन में हों वो ही विजिबल हों, लाइक जीन में स्मॉल टी भी हो सकता है, बट जो दिख रहा है वो कैपिटल टी है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो अपने आप को दिखा पा रहा है। जैसे कोई हेट्रोजाइगस प्लांट है, उसके अंदर दोनों जीन्स एलील्स हैं, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, बट कौन वो प्लांट दिखेगा हमें टॉल, बिकॉज उस जो टॉल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है एज इट इज़ डोमिनेंट, बट उसके जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो उसमें स्मॉल भी है। सो फिनोटाइप इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू द जीनोटाइप. Now the two generations, F1 and F2 generations, first filial generation and the second filial generation. First filial में क्या होता है, जब दो पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं पहले क्रॉस के बाद, दे आर कॉल्ड एज द F1 जनरेशन. फिर F2 जनरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं F1 को खुद से ही क्रॉस करके, तो F1 में जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको F1 से ही क्रॉस करके हम F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं. सो F1 इज reproduced among themselves to produce the second filial generation of the F2 generation. Now Mendel comes. Gregor Johann Mendel. He was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involved the transfer of characteristics from parents to progeny. So he is also known as the father of genetics, but his work was noticed very later, as he published his work in some journal that was not very a popular journal, and that's why the work of Mendel was not very much noticed when he was alive. But when he died, then three different scientists came: Karl, Correns, Schemak, and they decided to study what Mendel studied 100 years ago, and then they said yes, Mendel was doing that was very much right, and that's the time when Mendel started to be called as the father of genetics. But when he was alive, his work was not recognized. So he was the first person to make a study that was a systematic study. उन्होंने पहली बार दिखाया था कि कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे जो करेक्टर्स या ट्रेट्स हैं वो पहले से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं. सो मेंडल ने सबसे पहले चूज़ किया था पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस, क्योंकि पी प्लांट जो होता है उसमें डिफरेंट क्लियर कट डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग अप नहीं होता, जो डिफरेंसेस है वो क्लियर कट है. टॉल की तरह दिखेगा, शॉर्ट की तरह दिखेगा, कोई मीडियम साइज प्लांट नहीं होगा. सो इसलिए उन्होंने मेंडल चूज़ किया था. फॉर एग्जांपल टॉल एंड डॉफ पी प्लांट्स, सम प्लांट्स जो पी के थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे राउंड और येलो सीड्स, और अदर प्रोड्यूस कर रहे थे रिंकल और ग्रीन सीड्स. सो राउंड एंड येलो वर द डोमिनेंट and green and wrinkle were the recessive traits. Now another reason जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था, they were self pollinating. वो सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग सेल्फ पॉलिनेटेड उनके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस कम थे. उनमें जो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा था, कहीं बाहर से जीन नहीं आ रहा था, आपस में ही पॉलिनेट कर रहे थे खुद से ही. सो उनमें चांसेस जो थे वो किसी भी अदर जीन के आने के वो बहुत कम थे. इस वजह से उन जो स्टडी था वो प्योरली हो सकती थी बिना किसी कंटामिनेशन के. मेंडल ऑल्सो चूज पी प्लांट बिकॉज मैनी जनरेशन जो थी पी प्लांट की वो प्रोड्यूस हो सकती थी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो दैट्स वाई दीज आर द रीजन्स क्यों मेंडल ने पी प्लांट ही यूज़ किया. नाउ उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो मेंडल का जो पहला लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द इंटरनल फैक्टर्स. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अभी जीन वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, वो इंटरनल फैक्टर्स वर्ड यूज़ कर रहे थे जीन की जगह. तो उन्होंने ये बोला था कि जो करेक्टर्स या ट्रेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो अंदर से जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं. और ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं. पेयर में मतलब दो होते हैं एक साथ. जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हाइट लॉन्ग हाइट एंड टॉलर हाइट और एक शॉर्टर हाइट के लिए. सेम वे कलर के लिए दो डिफरेंट होंगे, येलो ग्रीन. सो दिस इज़ द फैक्टर्स जो कि हमेशा पेयर्स में होते हैं, और उनमें से कोई एक फैक्टर ही प्रेजेंट हो सकता है इन अ सिंगल गैमीट. दोनों फैक्टर्स कभी नहीं आते. सो दिस इज सेग्रीगेशन, मीन्स डिवीजन. दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं बल्कि सेग्रीगेट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. नाउ सेकेंड वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था दैट वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. उसके हिसाब से stated that in the inheritance of more than one pair of characteristics, यहाँ पे दो डिफरेंट करेक्टर्स की बात हो रही है, that is a dihybrid cross. मतलब इसमें हम प्लांट की हाइट भी ले सकते हैं एज वेल एज दूसरा करेक्टर हम जो शेप है सीड का वो भी ले सकते हैं. तो ये डाईहाइब्रिड था क्योंकि इसमें दो डिफरेंट करेक्टर्स यूज हो रहे थे. सो उन्होंने स्टेट किया दैट in the inheritance of more than one pair of characters or traits in a cross simultaneously, जो factors थे they were responsible for each pair of traits and
they were distributed independently to the gametes. So this is in the notes also I gave you this diagram, but it's not very clear I think, so let me zoom it out for you, and if it is not clear still, then we will discuss it in the class. So I'm trying to zoom it out, let's see if it is visible. Yeah, so this is pure breeding, round and yellow dominant थे, wrinkled और green वर द रिसेसिव वन. सो ये हमने दो पेरेंट यूज़ किए, एक पेरेंट हमने पूरा कम्प्लीटली डोमिनेंट लिया, दो कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट था वो, और एक पेरेंट हमने लिया जो दो कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव था. देन इनका क्रॉस किया, पेरेंटल गैमीट्स बनेंगे. गैमीट में जैसे कि सेग्रीगेशन में मैंने बताया था एक ही आएगा, तो आर से एक आर आएगा, वाई से एक वाई, स्मॉल आर एक, स्मॉल वाई एक. इनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, तो ऑफस्प्रिंग में एक आर स्मॉल आर के साथ करा मेट, capital Y with the small y. The resultant is the F1 generation, जिसमें कि हमें मिले राउंड और येलो सीड्स, बिकॉज जो डोमिनेंट थे वो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. बट जेनेटिक लेवल पे हमने देखा स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है. सो दिस इज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन अब F2 जनरेशन में कैसे कन्वर्ट होगी? बाय डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग F1 इंटू F1. जो F1 अपने आप से खुद से पोलिनेट करेगी, then it will form the F2 generation, and this is the Punnett square. How can we use to estimate the number of gametes that will be formed? तो इसमें हमने एक चेकर बोर्ड बनाया, Punnett square बनाया. यहाँ पे आर वाई जो एक गैमीट से बन रहे थे, आर वाई स्मॉल आर वाई, इनको हमने लिया, ठीक है, क्योंकि ये चार बन रहे हैं, तो एक बार आर वाई, एक बार स्मॉल आर वाई, फिर दूसरी बार फिर ये, और सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी रख दी. अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया इनका पेयरिंग, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई दो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये बना. ये है तो इसमें देखो सेम दिख रहे हैं, बट जेनेटिक लेवल पे सेम नहीं है ये, क्योंकि ये स्मॉल आर इसमें एक आ चुका है, तो फिनोटिपिकली सेम, जीनोटिपिकली डिफरेंट. सेम इन दिस केस, ये सब चारों सेम दिख रहे हैं, बट देखो सबका जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट है. सो दिस इज हाउ वी मेक Punnett स्क्वायर एंड हाउ कैन वी यूज इट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ गैमीट्स. सो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, वो रेशियो जो हमें देता है इट इज़ 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो होंगे वो येलो एंड राउंड होंगे, 3 होंगे येलो एंड रिंकल्ड, जो और 3 होंगे डिफरेंट, वो 3 ग्रीन एंड राउंड, एंड देन 1 ग्रीन एंड रिंकल्ड. नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स. तो करेक्टर्स या ट्रेड्स जो होते हैं पेरेंट्स के, वो ट्रांसमिट होते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स. एंड फॉर जीन्स जो मेंडल थे उन्होंने टर्म यूज़ किया था फैक्टर्स, बट एज द नॉलेज ऑफ जेनेटिक इट वाज फर्दर इंक्रीज, तो फिर जीन्स का टर्म यूज़ होने लगा. तो दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जीन वर्क्स इन पेयर्स. तो एवरी ट्रेड, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव. ईच पेरेंट पासिस ओनली वन ऑफ द टू जीन्स ऑफ द पेयर फॉर ईच कैरेक्टर. अभी हमने देखा कैपिटल आर से एक कैपिटल आर जा रहा था, दो में से एक, और दो कैपिटल वाई में से एक. सो दिस इज हाउ द गैमीट्स आर फॉर्म, ओनली वन विल बी ट्रांसफर्ड, एंड दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दो द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स टू जीन्स फॉर ईच ट्रेड फ्रॉम इट्स पेरेंट, बट द ट्रेड शोन will be the offspring depends on the inherited gene is dominant of the two. तो दिखेगा वही जो डोमिनेंट होगा, इवन वो हो सकता है कि वो उसमें रिसेसिव भी हो, बट फिनोटिपिकली वही दिखेगा जो कि डोमिनेंट होगा. नाउ द जीन्स. When a male gamete fuses with a female gamete during the process of fertilization, they make a new cell which is called as zygote, and it is a full set of genes, one full set of chromosomes. मतलब उसमें 2n condition होगा. This zygote then grows and develops to form a new organisms which have कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ज़ाइगोट में, जब वो डेवलप हो जाएगा उसमें बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, बोथ द पेरेंट्स, एंड विच इज़ इनहेरिट हुए हैं जीन्स के थ्रू. सो दिस इज हाउ द जीन्स वर्क. द टू जीन्स और पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. करस्पॉन्डिंग मीन्स एक के बाद एक, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं ऑन द क्रोमोसोम. एज यू ऑल नो कि क्रोमोसोम्स पे ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो करस्पॉन्डिंग पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, तभी वो इनहेरिट होंगे टू द डिफरेंट जनरेशन. नाउ द ब्लड ग्रुप्स. सो
a person has one of the four blood groups. As we all know, there are four main type of blood groups: A, B, O and AB. जो A and B हैं, they are co-dominant genes, whereas जो O है, it is a recessive gene. The genes for blood groups are donated by IA. A we are using as the subscript and IB. So A और B blood donate हो रहा है. If the genotype is IA, IA या फिर IA IO, तो क्योंकि O recessive है तो सिर्फ IA अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. IB IB है और IB IO है तो यहाँ पे B होगा क्योंकि O रिसेसिव है और सिर्फ B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. बट O सिर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, दोनों O. So now O will be expressed. So this is how the difference is between the dominant and recessive characters. Now the sex determination. How can the sex be determined that it's a boy or a girl? So the process by which the sex of a person is determined is called as the sex determination. So chromosomes which determine the sex of a person are called as sex chromosomes. So as we all know, we have 23 pairs of chromosome. Pairs मतलब 23 pairs हैं तो 46 total chromosome है, जिसमें से 22 pairs हैं they are autosomes and one pair is sex chromosome. तो 44 हमारे पास ऑटोसोम्स हैं जो कि सेम होते हैं मेल और फीमेल में, और दो जो होते हैं क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. सो दीज सेक्स क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. तो सेक्स क्रोमोसोम मेल में होते हैं वो होते हैं XY एंड फीमेल में XX. नाउ जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और ओवम में तो हमेशा X ही होगा क्योंकि फीमेल में सिर्फ XX होते हैं, तो द चांसेस not the chances, then the baby which will be produced will be a girl क्योंकि sperm भी X कैरी कर रहा है और ovum हमेशा X ही कैरी करता है. Now when the sperm carries Y and it fertilizes with the ovum which is always carrying X, so the baby which will be produced will be a boy because the chromosome now will be XY. So this is how the sex can be determined, and the chances whether it's a boy or a girl is dependent on male, not on female. Acquired and inherited traits. A trait of an organism which is not inherited but develops in response to the environment, इन्हें हम acquired trait कहते हैं. Acquired trait वो होते हैं जो हमारे बॉडी में तब नहीं होते जब हम पैदा होते हैं, ये तब आते हैं जब हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं. और ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये हमारे साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, ये हमसे दूसरी जनरेशन में नहीं पास ऑन होते क्योंकि ये जीन लेवल पे नहीं होते. For example, knowledge of doing something or any specific characteristics which can be used to develop environmental factors are not present by birth. जैसे कि someone is good at running, cycling, swimming and और playing some sport, तो वो उसके साथ उसी टाइम तक रहेगा जब वो जिंदा है. वो नहीं है कि अगर वो कोई बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो अपना जीन कैरी करेगा. कोई सिंगर है तो ज़रूरी नहीं वो अपना जीन कैरी करे और अपने ऑफस्प्रिंग को भी दे. हो सकता है कि कोई सिंगर है उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छा ना गाता हो. सो दीज आर द एक्वायर्ड करेक्टर्स जो लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर नॉट एट द जेनेटिक लेवल, तो वो पास ऑन नहीं होते टू द डिफरेंट जनरेशन. सो अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉज्ड बाय अ जीन बाय अ चेंज इन इट्स DNA और जीन्स, ये इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं. इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो DNA लेवल पे होते हैं, जो जीन के मैनिपुलेशन की वजह से आते हैं. सो ये वो होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, एंड दीज आर द ओनली ट्रेट्स जो हमें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो सकते हैं. इनका एग्जाम्पल है आई कलर एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन एक्सेट्रा. सो दिस वाज द कंप्लीट हेरिडिटी चैप्टर. देयर आर सम क्वेश्चंस विल बी डीलिंग इन द क्लास, एंड फॉर नाउ दिस मच इज इनफ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दिस इज द चैप्टर दैट इज कमिंग in your half yearly. So prepare this, and the notes I have already given.